का हल मिलेगा अलग अंदाज में। जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में, सुनो उनकी बातें सीखो हर बात का सार। जब भी चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार, जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। जब भी चाहो का साथ अब किस बात का इंतजार, आब्राकडाब्रा जो मंदिर के होंगे खत्म, जादूगरी होगी ऐसी क्या उठेंगे सर। पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला, पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट पंखुड़ी और मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त आफरीन। आप सभी का स्वागत है मस्ती की पाठशाला में। आज हम करेंगे खूब सारी बातें और सीखेंगे लाइफ के इम्पोर्टेंट लेसन्स, थोड़ी मस्ती और जीनियस के क्विज के साथ। आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। Why do teens get angry so fast? कभी गेम्स पे हार जाने पर, कभी मोबाइल न मिलने पर, कभी पेरेंट्स के नो बोलने पर। अक्सर स्टूडेंट्स बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। बिल्कुल, छोटी छोटी बातें भी बच्चों को अपसेट कर देती है, क्योंकि वो अभी अपने इमोशंस कंट्रोल करना सीख रहे होते हैं। अब मैं नाराज हो जाऊंगा आप दोनों से। अरे क्यों भाई जीनियस, आप क्यों नाराज हो गए? रीजन तो बताओ। अरे आप लोग जूनियर गेस्ट को इनवाइट ही नहीं कर रहे, इसीलिए। अच्छा, तो ये बात है। तो अब हम आपको वेट नहीं कराएंगे जीनियस। So let's invite Dhruvika Gulia. She is a 10th standard student of Sardar Patel Vidyalaya. She is a multi-talented young achiever with a passion for literature, debating, poem and a lot more. And also she is currently working on 2 English novels while excelling in academics, Olympiads, table tennis, music, theatre and a lot more. So let's welcome Dhruvika Gulia. A very warm welcome to you, Dhruvika, to our show Masti Ki Pathshala. Thank you so much for having me here. And Dhruvika, as you are so multi-talented, please let us know what are your hobbies? Well, where do I even start? For me, poetry has always been a passion. I've also been very passionate about public speaking. So debating, TEDx, it's all my jam. That's nice. Dhruvika, I have a question for you. What kind of books do you read? I like all genres, but lately I've been dabbling in psychological horrors. So I've been reading this book called I Who Have Never Known Men by Jacqueline Hartman. I feel like it's really changed my perspective on the world and on how I view life in itself. Wow, nice. I should also try this book. And when did you start writing poems? I started in 3rd grade. I used to have a little notebook in which I would write poetry in the recess. And from 7th standard onwards, I watched Dead Poets Society, and I feel like my passion for poetry really grew then. And I started expressing myself using poetry and using lines that rhyme. That's truly inspiring because you started working on your passions so young. Dhruvika, I believe you are writing a novel. Can you tell us about your novel, please? Of course, I'm writing this psychological horror. I've always been into psychological horrors. And this novel, I wouldn't want to spoil a lot. You can expect to be horrified by the end of it. ध्रुविका, मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। Also, Dhruvika, I want to know, are you on social media? Because social media is a concerning topic nowadays. So what's your viewpoint on that? I am on social media, mainly because it's my primary source of communication with my friends. Although I do believe that using too much social media can become an addiction. So let's use it, but not overuse it. बिल्कुल सही। Truly said. Dhruvika, could you recite something created by you to us? Of course. I have a piece of poetry with me that I composed a few weeks ago, so it's honestly recent. This one is called The Symmetry of a Tree. It's based on the environment and it's a satire. The branches stand asymmetrical, its bark a curve upon the ground. Surely something so uneven and unappealing ought to be taken down. Sure, it lends me some air to breathe, the water I drink and the nourishments I eat. But we like straight lines and perfect angles. We like concrete and glass built in perfect symmetry. A building built with perfect measure, maybe 2 or 3.
earns me money, buys me vacations, gets me a private suite. Wow. It brings me a job and some high-profile friends. What more could I need? Glass and iron and concrete blocks, 90-degree angles, perfectly rigid lines. So much better, so much more useful. Much better to utilize the space this crooked tree occupies. Yes, let's pull out the tree. Let's build with symmetry instead. And smile at ourselves in the glass when we all end up dead. You are truly multi-talented, ध्रुविका. Really. So, ध्रुविका, आप अपने उम्र के बच्चों को क्या सजेशन देना चाहोगे? Well, मेरे उम्र के बच्चे they are so politically aware. उनको पता है कि situation क्या है, globally situations क्या है. I just want to say, learn to express. आप जो भी करते हो, आप अपने पूरे दिल से करो, आप पूरी जान लगा के करो. Whatever you do it with passion because it is what matters the most. And आप यही moments आगे जाके याद भी रखेंगे. Truly said, Dhruvika. Thank you so much for coming to our show and sharing your such a brilliant talent with all of us. Thank you so much. Thank you for having me here. And Dhruvika, I will be waiting for your novel. See you again. Bye-bye. पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। आज के इस फास्ट मूविंग लाइफ में बच्चे बहुत कम उम्र से ही इमोशनल प्रेशर फील करते हैं, जिसकी वजह से गुस्सा होना एक कॉमन रिएक्शन बन चुका है। इसका एक मेजर रीजन है एक्सेस स्क्रीन टाइम, जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग लेस फिजिकल एक्टिविटी, मोर स्क्रीन टाइम और पुअर स्लीपिंग हैबिट भी हमारे इमोशनल बैलेंस को अफेक्ट करता है। तो आज इसी टॉपिक पर हमसे बात करने आ रही हैं हमारी एक्सपर्ट अपराजिता बासु रॉय। शी इज स्पेशलाइज्ड in clinical research and supporting neurodivergent individuals. So let's welcome Aprajita Basu Roy ma'am. मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. I am very glad to be here. आज का हमारा टॉपिक है Why do teens get angry very fast? और इसी टॉपिक से रिलेटेड आफरीन का आपसे एक सवाल है। मैम, why do I suddenly feel angry without any big reason? एंगर जैसे हमारा सैडनेस होता है, जैसे हैप्पीनेस होता है, इट्स एन इमोशन। किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना इज़ ऑलवेज बैड। हम ज़्यादा खुशी है तो भी ख़राब है, ज़्यादा दुखी है तो भी ख़राब है। वैसे एंगर इज़ अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग। हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसको इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड हमें कोई सिखाता नहीं है एंगर को कैसे एक्सप्रेस करना है। तो ये छोटी छोटी बातों पे एंगर होना बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तुम्हारी उम्र में इतनी ही सारी चेंजेस हो रही है, इतनी सारी चीज़ें ऊपर नीचे, एकेडमिक प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, क्लास में दोस्तों के साथ फिट इन होना है, कहाँ कॉलेज जाऊंगी, ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, राइट? यस मैम। और मैम, आज हमारे साथ ग्रैट्स इंटरनेशनल स्कूल ग्रेटर नोएडा के भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और उनका भी इसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे सवाल है। सो स्टूडेंट्स, अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैम, मेरा नाम अग्रिका है और मेरा ये सवाल है कि जब मेरे दोस्त गुस्सा होते हैं तो उनको छोटी छोटी बातें भी बड़ी क्यों लगने लगती हैं? गुस्सा, जैसे मैंने बोला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन होती है। जैसे हेट, लव, ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होती है। कभी नोटिस करके देखा है कि हम जब बिल्कुल गुस्से में होते हैं ना, हम कुछ ढंग का सोच नहीं पाते हैं और ऐसा लगता है जैसे दिमाग एकदम धम सा पड़ गया या सुन सी आवाज़ हो रही है हमारे दिमाग में, है ना। तो ऐसा ही होता है। तो अब क्योंकि हम कुछ और नहीं सोच पा रहे हैं, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हम हंसी मजाक में ऐसे ही निकाल देते हैं। अगर हम गुस्से में हैं तब कोई बोलेगा हमें तो हम उसे और ज़्यादा फील करते हैं, तब उससे ज़्यादा परेशानी होती है, तब ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि तब लगता है सब हमारी बॉडी की फाइट, फ्लाइट, फ्रीज और फॉन 4 Fs है जो कि होता है और ये इनवॉलेंटरी है, हम जानबूझ के नहीं करते, तो हमारी बॉडी खुद से कर लेती है। तो जैसे ही गुस्सा आता है, ज़्यादातर लोगों में क्या होता है, बिल्कुल दिमाग फाइट और फ्लाइट में होता है, या तो मैं लड़ जाऊंगी या मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगी। थैंक यू मैम। सो स्टूडेंट्स, कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? मैम, मेरा नाम तन्वी है और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आजकल बच्चे छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा शाउट करने लग जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स क्या करें? मोस्ट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, ज़्यादातर देशों में, स्पेशली एशियन देशों में जैसे कि इंडिया, गुस्सा बहुत बुरी चीज़ बोली जाती है, क्योंकि बचपन से हमें किसी ने सही तरीके से गुस्सा कैसे निकालते सिखाया नहीं गया है, ठीक है। एंड गुस्सा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभार गुस्सा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके वजह से तुम सही से, मतलब अगर तुम गुस्सा ना हो
तब शायद से तुम जितना इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ना ले पाओ। सो इसी वजह से गुस्सा होना ज़रूरी है। लेकिन बच्चों को हमने कहाँ सिखाया है, बच्चे सब सीख के थोड़ी ना आते हैं। हमने बच्चों को सिखाया है कि भूख लगी है तो बोलो। पहले तो वो रोते ही थे, सिर्फ रोते थे, हर चीज़ के लिए रोते थे। वैसे ही बच्चों को सिखाना ज़रूरी है कि अगर गुस्सा आ रहा है तो क्या करना है। चिल्लाना एक तरीका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि हम जैसे बच्चों की भाषा समझ नहीं पाते। और तुम्हारी उम्र तक सबसे ज़्यादा आई थिंक सब बच्चे फील करते हैं कि मम्मी पापा तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं समझ सकते, है ना। तो बात क्या है, जो तुम बोलना चाहते हो वो मम्मी पापा तक नहीं पहुँची, जो वो बोलना चाहते हैं वो तुम तक नहीं पहुँची, तो बात नहीं हो पा रही, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। इसीलिए गुस्सा बढ़ता जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो जाती है। तो पेरेंट्स सबसे पहले, ये हम एज अडल्ट्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बच्चे हैं, इनका अभी सारा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबसे पहले हम काम हो जाए, ठीक है। बच्चे से एक्सपेक्ट करना कि वो चिल्लाएंगे नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, हाथ पैर नहीं चलाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई। हम पहले करेंगे, हम नहीं चिल्लाएंगे बच्चों पे। तो बिल्कुल अगर आप भी चिल्ला रहे हो, बच्चा भी चिल्ला रहा है, तो आवाज़ ऊंची 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 होती जाएगी सिर्फ। तो आप शांति से बात करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो वो बच्चा चिल्ला क्यों रहा है, कि वो क्या बोलना चाह रहा है। ज़्यादातर समय वो कुछ बोलना चाह रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, इसीलिए वो बच्चा चिल्ला रहा है। कभी कभार टैंट्रम्स भी होते हैं, आजकल टैंट्रम्स बढ़ रहे हैं, तब उन्हें ऑप्शंस दो कि देखो तुम जो चाहते हो वो तो नहीं हो सकता, या फिर ये सही नहीं है, तो तुम ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, मैं तुम्हें यही ऑफर कर सकती हूँ। तो क्या करना चाहोगे तुम? क्या यहीं पे रोके चिल्लाना चाहोगे? तो मेरे पास कुछ नहीं है, तुम चिल्लाते रहो, मैं वहाँ बैठी हूँ। लेकिन तुम चिल्ला के ना ये दो अच्छी चीज़ें कर सकते हो। तुम्हें क्या करना है? थैंक यू। मैम मुझे कुछ कहना है। मैम, जब आफरीन, पंखुड़ी और चबी ये लोग मुझे मिलकर चढ़ाते हैं ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। पर मैम फिर मैं गहरी गहरी सांस लेता हूँ और फिर मेरा गुस्सा छूम मंतर हो जाता है। क्या ये सही तरीका है मैम अपने गुस्से को कंट्रोल करने का? बिल्कुल। और आपने जो अभी गहरी सी सांस ली ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ सांस नहीं, एकदम अंदर से सांस लेना है, ऐसे सांस लेना है, तभी जाके हमारा गुस्सा शांत हो पाएगा। लेकिन एक दो सांसों से नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारा गुस्सा है हमारे दिमाग में अभी। तो जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो जाता, जब तक तुम्हें लगता है कि अच्छा अब मैं थोड़ा थोड़ा सोच पा रही हूँ या पा रहा हूँ, तब तक गिनती करो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैम, मेरा नाम अधिराज सिंह है और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हम अपने गुस्से पे प्रैक्टिस से कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल, सीखना, हाँ, जिंदगी में सब सीखना पड़ता है। तो धीरे धीरे तुम अगर कोशिश करोगे कि गुस्से पे काबू कैसे ला सकते हैं, गुस्से को एक्सप्रेस कैसे करना है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए देखिए, हर गुस्सा एक्सप्रेस करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभार कुछ चीज़ को लेके गुस्सा आया है, जैसे भूख लगी है, गुस्सा आ रहा है। अब भूख लगी है, गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से को नहीं एक्सप्रेस करेंगे, भूख लगी है इसको एक्सप्रेस करेंगे। कभी कभार ऐसे ही गुस्सा आ रहा है, जैसे इन्होंने पूछा और किसी और ने भी पूछा, है ना, ऐसे ही गुस्सा आ रहा है, तो क्या करना है? कुछ नहीं, एक्सप्रेस नहीं करना। कभी कभार सामने वाला भी बहुत गुस्से में है और वो हमसे बड़े हैं, तो बात नहीं हो पा रही, तो हम गुस्सा नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। या फिर हमारे दोस्त बहुत गुस्से में है, तो या फिर कोई बहुत खतरनाक इंसान हमारे सामने गुस्से में है, तो गुस्से पे हम नहीं एक्ट करेंगे। लेकिन जब हम सेफ जगह पे, सेफ जगह कैसे बोलेंगे, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, हमारे जो क्लोज सर्कल है उनके सामने है, तब हम अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर सकते हैं आराम से। ठीक है, कैसे करना है? पहले शांत हो जाओ, गुस्से में कुछ नहीं बोलना, क्योंकि मैंने जैसे बोला दिमाग में सिर्फ गुस्सा है। दूसरा, तुम लोग अभी, क्योंकि हम सीख रहे हैं गुस्से पे कैसे काबू करना, प्रैक्टिस करो कि क्या बोलना है, क्या बोलने से, किस भाषा में बोलने से, किस तरीके में बोलने से जो मैं बोलना चाहता हूँ वो सामने वाला इंसान समझेगा। थैंक यू मैम। गाइस, कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? मेरा नाम सिद्धांत है। मेरा क्वेश्चन ये है, स्ट्रेस और एंगर का एग्जैक्ट कनेक्शन क्या है? एंगर बहुत सारी चीज़ों से ना ज़्यादा बढ़ती है। जैसे मानो
आग में घी डाल दी तो बढ़ेगी, है ना, तेल डाल दिया तो बढ़ेगी, वैसे ही गुस्से में बहुत सारी चीज़ें ऐड करोगे ना तो वो बढ़ती है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, स्ट्रेस की वजह से हम कितना चीज़ समझ सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बिना गुस्सा हुए वो छोटी छोटी होती जाती है। स्ट्रेस का मतलब ये भी है कि वो शरीर का स्ट्रेस है, जैसे मैं थकी हुई हूँ, भूख लगी है, प्यास लगी है, सर दर्द कर रहा है, तबीयत खराब है, या फिर वो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, मम्मी पापा का स्ट्रेस है, दोस्तों का स्ट्रेस है। इन सारी चीज़ों से गुस्सा बढ़ता है, या फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम गुस्सा हो सकते हैं। गुस्सा होने का पीरियड आसानी से गुस्सा हो जाते हैं। इसी तरीके से स्ट्रेस और गुस्से में बहुत बड़ा रिलेशन है। तो स्ट्रेस में होते हैं हम या गुस्से में होते हैं तो एक दूसरे को अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो में आए एंड आपने इतना अपना वैल्यूबल टाइम दिया। थैंक यू सो मच। आज हमने एंगर और इमोशन को काफ़ी अच्छे से सीखा। अगर हम अपने इमोशंस को अच्छे से समझें और कामली रिएक्ट करें तो गुस्से को कंट्रोल करना बहुत आसान हो सकता है। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर फेवरेट सेगमेंट, डू यू नो। गाइस, डू यू नो, जब टीन्स बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं तो उनका ब्रेन अलार्म मोड में चला जाता है। इसका मतलब उनका ब्रेन कुछ भी ठीक से नहीं थिंक कर पा रहा। बिल्कुल, उस टाइम ब्रेन का थिंकिंग पार्ट स्लो हो जाता है और रिएक्शन पार्ट फास्ट हो जाता है। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि आ रहे हैं मजेदार सवाल जिसका आप देंगे जवाब। तो हो जाइए तैयार, आ रहा है क्विज का पहला सवाल। तो ध्यान से सुनिए मेरा पहला सवाल। बच्चों में गुस्सा जल्दी ट्रिगर होने का सबसे कॉमन रीजन क्या होता है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बैलेंस रूटीन, ऑप्शन बी इमोशनल स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन, या फिर ऑप्शन सी प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही जवाब? कौन बताएगा? हाय जीनियस, मेरा नाम मयूर शर्मा है। इसका करेक्ट आंसर है इमोशनल स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन। और यह है बिल्कुल सही जवाब। हो जाए जोरदार तालियां। तो चलिए पूछता हूं आपसे अपना अगला सवाल। ध्यान से सुनना। गुस्से के टाइम ब्रेन पर क्या इफेक्ट होता है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है, ऑप्शन बी मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है, या फिर ऑप्शन सी फोकस डबल हो जाता है। आहा, तो बताओ दोस्तों, क्या है इसका सही जवाब? कौन बताएगा? बोलो बोलो, सोचो सोचो, टेल। हाय जीनियस, मेरा नाम अभिनव सिंह है और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए थिंकिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। वेरी गुड, यह है बिल्कुल सही जवाब। हो जाए जोरदार तालियां। तो चलिए पूछते हैं आपसे अपना अगला सवाल। ध्यान से सुनना, ठीक है? जब बच्चे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो क्या होता है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बच्चे काम रहते हैं, या फिर ऑप्शन बी बच्चों को गुस्सा और उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, या फिर ऑप्शन सी बच्चों की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, तो बताओ क्या है इसका सही जवाब? कौन बताएगा? बताओ बताओ। हाय जीनियस, मेरा नाम पलक है। इसका आंसर बी है, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही जवाब। हो जाए जोरदार तालियां। तो चलिए अब पूछता हूं अपना अगला सवाल। भाई ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ठीक है? गुस्सा जल्दी आने का साइकोलॉजिकल रीजन क्या हो सकता है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल कंट्रोल, ऑप्शन बी हाई रिलैक्सेशन, या फिर ऑप्शन सी लो पेशेंस एंड स्ट्रेस। बताओ दोस्तों, क्या है इसका सही जवाब? कौन बताएगा?
हाय जीनियस, मेरा नाम जपजोत है। इसका आंसर सी है, लो पेशेंस एंड स्ट्रेस। हो जाए जोरदार तालियां, सही जवाब। तो चलिए अब मैं पूछता हूं अपना आखिरी सवाल, ध्यान से सुनना, ठीक है? गुस्सा आने पर बेस्ट फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पॉज और थिंक बिफोर रिएक्टिंग, ऑप्शन बी रिएक्ट इंस्टेंटली, या फिर ऑप्शन सी लाउड शाउटिंग। तो बताओ दोस्तों, क्या है इसका सही जवाब? कौन बताएगा? जीनियस जीनियस, मैं बताऊं आंसर? अरे हाँ, क्यों नहीं, बताओ आफरीन, जरूर बताओ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पॉज और थिंक बिफोर रिएक्टिंग। आहा, ये है बिल्कुल सही जवाब। हो जाए जोरदार तालियां। पॉज और थिंक बिफोर रिएक्टिंग। दोस्तों, गुस्सा आना नॉर्मल है, लेकिन गुस्से को सही तरीके से हैंडल करना ही स्मार्टनेस है। समझे? क्या समझे? हाँ, सही समझे। ट्रू, एंगर मेक्स अस वीक बट कामनेस मेक्स अस स्ट्रांग। फ्रेंड्स, गुस्सा आग की तरह होता है। अगर कंट्रोल करो तो रोशनी देता है, और अगर नहीं कर पाओ तो बहुत नुकसान करता है। अरे चबी, आज आप कौन सी कहानी सुना रहे हो, ये तो बताओ। आज कहानी नहीं, आज इमोशंस का मैजिक देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार बरनवाल। आप देख रहे हैं मस्ती की पाठशाला, और ये है बड़ा ही स्पेशल सेगमेंट जादुई बॉक्स। मैं अपने साथ एक डेक ऑफ कार्ड्स हमेशा रखता हूं, प्लेइंग कार्ड्स, जिसमें कुल 52 पत्तियां होती हैं। तो मैं कुछ दिमाग पढ़ने का जादू दिखा सकता हूं, और मैं इसके लिए किसी को बुलाना चाहूंगा जिसका मैं दिमाग पढ़ सकूं। आपका नाम? निकिता। हेलो निकिता। हेलो। आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में मालूम है इसमें कुल कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? नहीं। इट कंटेन्स 52 कार्ड्स, 2 और 3 जोकर्स एंड सम एक्स्ट्रा कार्ड्स। फ्रेंड्स, ठीक से देखें, यू कैन सी ईच एंड एवरी कार्ड्स आर कंप्लीटली डिफरेंट एंड नॉर्मल। निकिता, सारे कार्ड्स अलग अलग है, बिल्कुल मिक्स है जी। मैंने कार्ड को कितनी बार मिक्स किया? मल्टीपल टाइम्स। थोड़ा आप आगे आ सकते हैं। और अब मैं कुछ इस तरीके से कार्ड को फैलाने वाला हूं। आप देख रहे हैं कि मेरा थंब कार्ड के एजेस पे पड़ रहा है। बिल्कुल। और मैं इसे स्क्रॉल डाउन कर सकता हूं इस तरह से। सो मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूंगा एंड यू कैन से स्टॉप एनी टाइम एनीवेयर वेयर यू वांट। इट्स अप टू यू। मैं अपने थंब को नीचे करने वाला हूं और आप कहीं पे भी स्टॉप कर सकते हैं। मैं आगे भी बताता हूं, जहां पे आप मुझे स्टॉप बोलते हो वहां पे वो कार्ड आपका सेलेक्ट हो जाता है और वो आपका सेलेक्टेड कार्ड होता है। वो कार्ड हमारे व्यूवर्स को दिखानी है हमें और आपको देखनी है, पर इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नाउ। आर यू रेडी? यस। ओके, स्टॉप राइट देयर। या तो मैंने यहां से कार्ड सेपरेट किया और आप देख सकते हो। साथ ही आप मुझे भी चेक कर सकते हो कि मैं कार्ड को नहीं देख रहा हूं। आप इस कार्ड को बाहर ले सकते हो अपने हाथ में। सी, आप इसे बंद कर सकते हो अपने दोनों हाथ से कवर करके। क्या मैं अब सामने देख सकता हूं? जी। कार्ड दिखाई तो नहीं दे रहा? नहीं। फाइन। सो व्यूअर्स, निकिता का स्टॉप किया हुआ सेलेक्टेड कार्ड आपके पाम में है, आपके फिस्ट में है, दोनों हाथों के बीच बंद है। एंड यू कैन ड्रॉप इट राइट देयर फेसिंग डाउन। जैसा है वैसे ही मैं देख सकता हूं। यस।
ओके और मैंने कुछ कार्ड यहाँ पे ऐसे स्प्रेड कर दिए हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हो कार्ड मैंने स्प्रेड कर दिए हैं। बहुत धीरे से एक ब्लो करेंगे। फाइन, मैं इसको कलेक्ट कर रहा हूं। मैं लाइक इस तरह से मैंने एक फैन बनाया है कार्ड का, यू कैन सी लाइक दिस। और मैं आपको पूछूं कि क्या ये फैन में से पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है जी, और आगे दिख रहे हैं कार्ड्स। मैं आपको पूछूं कि आपके सेलेक्टेड कार्ड इसमें शो हो रहे हैं? अगर हो रहा है तो से यस, नहीं हो रहा है यू कैन से नो। यस, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है फाइन। मैंने इस पूरे डेक को आपके हाथ पे रख देता हूं। आपने चश्मा पहना हुआ है, आप इसे निकाल के इस डेक पे टच कर सकते हो। यस, यू कैन गिव मी। आपका ही है? हाँ। ओके। सो निकिता, वो सेलेक्टेड कार्ड आपको मालूम है, याद है? बिल्कुल। अच्छा, एक बारी को मैं मजिशियन हूं तो मुझे मालूम हो सकता है आपका कार्ड, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या इस चश्मे को मालूम हो सकता है कि आपका सेलेक्टेड कार्ड कौन सा है? नहीं। अभी ध्यान से देखना है और आपको ऐसा फील करना है कि आप उस कार्ड की पिक्चर यहाँ ड्रॉ कर रहे हो इस मिरर में। आपने विजुअलाइज करना है कि आप यहाँ पे वो डिजाइन कर रहे हो वो कार्ड। किया आपने ऐसा? जी। ओके, लेट्स सी। अगर आपने विजुअलाइज किया है, आपका विजुअलाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट है, हाँ। तो मेरी एक फूक पे यहाँ पे एक चमत्कार होगा जो आपके माइंड को ब्लो करेगा। लेट्स सी। सो ये मैं भी देख पा रहा हूं। कौन सा कार्ड है? किंग ऑफ डायमंड। यस। निकिता, आपको मालूम है कि आपका सेलेक्टेड कार्ड जो हमने चश्मे में देखा अभी, वो किंग ऑफ डायमंड कितने नंबर पे है? नहीं। ठीक है, एक स्नैप के जरिए मैं अभी आपको एक मजिशियन वाले एनर्जी आपको शेयर करता हूं, और आप भी इस वक्त मजिशियन हो। आप क्योंकि एक मजिशियन के साथ हो, इसीलिए आप ये बता सकते हो कि आपका सेलेक्टेड कार्ड कितने नंबर पे है। सो नाउ लेट मी परफॉर्म and let me know any number. Fifth. Fifth. Yes. Five is your final selection. Yes. आपके हाथ में देता हूं। आप स्टैक नीचे रख दो और आप यहाँ डील कर सकते हो मेरे हाथ पे। Your selected number is 5. Yes. ठीक है, अभी आप डील कर सकते हो। 1. Yes. 2. Yes. 3. Yes. 4. Yes. And 5. You can show it. Is it? आप चेक कर सकते हो। Yes. आपका सेलेक्टेड नंबर था 5 और नंबर 5 पे ये कार्ड है। सो ये था दिमाग पढ़ने का जादू। थैंक यू सो मच निकिता फॉर ज्वाइनिंग आवर शो। थैंक्स अ लॉट। देखते रहो मस्ती की पाठशाला। मिलता हूं अगले एपिसोड में कुछ नए मैजिक के साथ। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का मैजिक? मजेदार था ना? तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, और अपना फीडबैक देना ना भूले ऑन आवर ईमेल mastiki.pathshala@gmail.com पर। अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग क्विज, नई कहानी और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ फिर से पाठशाला में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। स्टे काम, स्टे काइंड and keep shining. Bye-bye. Bye.